Hello everyone, first chapter today, so 20 MCQs. So now let's move on with the we have here. It is based on allegation and mixtures. Now in what ratio must a grocer mix two variety pulses costing rupees 85 per kg and rupees 100 so as to get a mixture worth rupees 92? Right, and so now cheaper one is 85, the dearer one is 100 and the mean price is 92. So this is how we go on. So D minus M as we would have seen in the formula list also, and here we get 7. Now here the important point is this is cheaper quantity. ओके चीपर के नीचे चीपर ही आता है और डियरर के नीचे डियरर आता है. सो जो रेशो बनेगा आपका वो क्या बनेगा 8:7. So hardly would have taken few seconds to solve this question. I don't think anyone would have taken a longer time, right? So ratio of cheaper to the ratio of dearer. Remember, in चीपर के नीचे चीपर का रेशो होता है और डियरर के नीचे डियरर का. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड यू विल नेवर लूज द मार्क्स बेस्ड ऑन दिस बिकॉज इफ यू आर क्लियर विद दिस पॉइंट आप रेशो कभी भी उल्टा नहीं लिखेंगे क्योंकि एमसीक्यूज में इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग समटाइम्स. रेशो मॉड्यूलो सो 49 प्लस 57 मॉड 50. तो हमने आपको प्रॉपर्टीज भी दिए हैं क्विक रिवीजन फॉर्मूले में. अगर आपने उससे किया है तो उससे भी आंसर आएगा और नहीं तो आप ऐड करके भी निकाल सकते हैं आंसर बिकॉज द नंबर इज ओनली 50. If I do with the property कि we can do it for the individual numbers. So 49 को अगर हम 50 से करेंगे what we can write -1 or 49. So -1 is a smaller number. So let's go for that. अगर हम 7 को करेंगे 50 से 57 को अगर हम 50 से डिवाइड करेंगे so what will be the remainder 7. और -1 plus 7 कितना होता है स्टूडेंट्स -1 plus 7 is 6 which is smaller than mod number 50. So what's your remainder? So the remainder is 6, right? So जहाँ भी mod होता है we are concerned with the remainder. It's not written here what is the remainder, but we are concerned with the remainder because it's written mod. Correct? So A mod B is equal to n अगर हमने पढ़ा है. So what does it mean? The remainder n. Okay, or the remainder r. A mod B is equal to r. So don't get confused. What are we going to solve for? Mod है तो remainder के लिए solve करना है. Correct? So the correct answer is C. Now let's move on to the next. Two pipes A and B can fill a cistern in 30 minutes and 40 minutes respectively. Now both pipes are open, the tank will be filled in 21 minutes if the pipe B is turned off after. So now the point here is in this question, this is on pipes and cisterns as you can see. So here 30 minutes or 40 minutes लग रहे हैं A और B को. So 1 minute में A tank कितना fill करेगा? 1/30, right? So 1 minute में B tank कितना fill करेगा? 1/40. अब आपको एक बहुत ईजी सा वे बताते हैं इसको सॉल्व करने का. पूरा टैंक कितनी देर में फिल हुआ 21 मिनट्स में. तो इसका मतलब 21 मिनट्स तक ए पाइप पूरा चलता रहा. करेक्ट. और बी पाइप कहीं तो ऑफ हुआ वो हमें निकालना है. सो 1 मिनट में ए टैंक ने कितना फिल किया 1/30. सो 21 मिनट्स में वो कितना फिल करेगा 21/30. सिंपल सा लॉजिक है. आप 21 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/30 से. और हमें किसका टाइम निकालना है बी का. बी चला होगा n मिनट सपोज. तो बी ने कितना टैंक फिल किया होगा n/40. और दोनों जब चले तो टैंक हो गया फुल. फुल के लिए क्या लेते हैं हम 1. जस्ट सॉल्व दिस सिंपल इक्वेशन. कोई आपको 2-3 इक्वेशन नहीं बनानी है. सिंपल इसको सॉल्व करना है. 21 मिनट्स में टैंक फिल हुआ है. इट्स गिवन टू यू. सो ए पाइप जो है वो 21 मिनट्स तक चला. हमने बी पाइप को बीच में ऑफ किया था. करेक्ट. तो वो n मिनट्स तक चला. नाउ लेट्स सॉल्व इट. सो 120 if I take the LCM. So 4 ones are 4, 84 plus 3n. Correct? Now let's solve it. 3n is equal to 120 minus 84. So 6. So n is coming 12. इसका मतलब 12 मिनट्स के बाद हमने बी पाइप को बंद कर दिया. So our final answer is D. So B pipe was turned off after 12 minutes. ओके. सो दिस इज व्हाट वी हैव. सो वेरी सिंपल क्वेश्चन. एक ही इक्वेशन आपको बनानी है और कुछ नहीं. बहुत सिंपल वे में आई एक्सप्लेन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. नाउ दिस इज अगेन बेस्ड ऑन फर्स्ट टॉपिक दैट इज द एलिगेशन एंड मिक्सचर का जिसका क्वेश्चन था. सो अ मर्चेंट हैज 1000 kg ऑफ शुगर, राइट, पार्ट ऑफ विच he sells at 8% profit and the rest as 18% profit. He gains 14% on the whole and the quantity sold
you have to find the quantity sold at 18% profit is how much. Now if I go with this, so इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. 1000 kg को हमें डिवाइड करना है किसमें, दो चीज़ों में. हमने एक को 8% से सेल आउट किया है प्रॉफिट से, एक को 18%, और प्रॉफिट हमें कितना हुआ 14. सो इसमें कोई आपको सेलिंग प्राइस प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है. आप सिंपली प्रॉफिट को 8% को 8 से ले सकते हैं, प्रॉफिट 18% को 18 से ले सकते हैं, एंड द क्वांटिटी सोल्ड दैट्स अ मीन is 14. Now let's work it out first. So what do you get here? 4, that is D minus M. And here we work it out, M minus C. So we get 6. Now 4 is to 6 ratio आ रहा है हमारे पास. Again, cheaper, dearer. मतलब कम प्रॉफिट ज़्यादा प्रॉफिट वाले का. सो 4/6 इज द रेशो, करेक्ट. और हमें किस चीज़ को डिवाइड करना है, 1000 kg को. अगर हम 1000 kg को डिवाइड करेंगे तो उसको सॉल्व करने के बहुत सारे वेज हैं. अगर हम ये 8% प्रॉफिट लिख देते हैं हम आपके लिए, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 18% प्रॉफिट. ठीक है, आंसर तो आप सबको आ गया होगा समझ में. करेक्ट. नाउ दिस इज व्हाट वी हैव. सो 4/10, दैट इज 4 प्लस 6, 1000. करेक्ट. आप 400 kg, कौन सा वाला, 8% वाला. करेक्ट. और ये क्या हो जाएगा, 6/10 इंटू 1000. 10 क्यों किया है, सबको समझा, because 4 plus 6 is 10. This is how do we find the ratios. That's a simple thing. और अदरवाइज 1000 को डिवाइड करना है 4:6 में, आप ओरली भी कर सकते हैं 400 और 600, बट नीचे कौन सा नंबर है, 18% प्रॉफिट, और वही हमें निकालना है. सो द आंसर इज बी, 600 kg. करेक्ट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. 8 into 14 in 12 hours clock is how much. Now ये एक छोटा सा थिंग है कि 8 into 14, आप सोचेंगे कोई टाइम तो दिया नहीं है हमें आगे क्या होगा, बट इफ यू जस्ट थिंक ऑफ इट, 8 into 14, आप इसको भी अगेन डिफरेंट वे से कर सकते हैं स्टूडेंट्स. देखिए, एक वे प्रॉपर्टीज है, नहीं तो आप 8 और 14 को मल्टीप्लाई करिए सिंपली. करेक्ट. 112, और इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए. करेक्ट. सो व्हाट विल यू गेट, 112 को अगर आप 12 से डिवाइड करते हैं, 9 एंड 4 रिमाइंडर. ओके. सो नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि जब 12 आवर का क्लॉक चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, तो अभी अगर हमने कोई टाइम हमें नहीं दिया हुआ है, सो वी थिंक इट विल स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट. तो कितनी बार भी वो साइकिल ले ले, कितनी बार लेगा, 9 टाइम साइकिल लेगा, 12 आवर 12 आवर 12 आवर करके, तो क्या टाइम बचेगा, AM PM नहीं बता सकते क्योंकि हमें टाइम ही नहीं दिया है. बट इतने आवर्स चलने के बाद टाइम क्या बचेगा, 4 o'clock. व्हाट विल बी द टाइम, 4 o'clock, बिकॉज 4 इज द रिमाइंडर. वो 4 o'clock हमें टाइम देगा. बेसिकली द थिंग इज कि हमारे पास क्लॉक कितना अहेड हो जाएगा, जो भी 4 hours अहेड, जो भी टाइम हमारे पास है. तो इनिशियली जब कुछ टाइम नहीं दिया है तो हम उसको इनिशियल से स्टार्ट करते हैं. तो हमारे पास अभी क्या बचा होगा, 4 o'clock, राइट. 12 AM 12 PM 12 noon, क्या कहाँ से स्टार्ट हुआ, वी डोंट नो एनीथिंग. करेक्ट. सो दैट इज व्हाट, yeah. So the answer is A, 4 o'clock. Right? Now let's move on to the next. The speed of the boat in still water is 15 km per hour and the rate of current is 3 km per hour. The distance traveled by the boat downstream in 12 minutes is. तो यहाँ पे अभी हमें देखिए, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर दिया है, स्पीड ऑफ द करंट दिया है. रेट ऑफ द करंट मीन्स स्पीड ऑफ द करंट. ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. नाउ डाउन स्ट्रीम का हमें डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है. तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डाउन स्ट्रीम का स्पीड. डाउन स्ट्रीम का स्पीड कैसे निकालते हैं, क्या दिया हमने आपको फॉर्मूला लिस्ट में. फॉर्मूला लिस्ट अगर आपको याद हो, देखिए आपने ये सारे क्वेश्चंस 20 मिनट्स या 15 मिनट्स में कर लिए होंगे, राइट. सो यू वुड हैव फाउंड ईजी. पहले आप फॉर्मूला लिस्ट देखिए, उसका वीडियो देखिए, सारे फॉर्मूले अच्छे से याद कर लीजिए और समझ लीजिए. ठीक है, आपको कोई भी क्वेरी होती है, पुट इट, आई विल आंसर इट. नाउ डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, दोनों स्पीड को हमें ऐड करना होता है बिकॉज वी मूव ऑन अ फास्टर पेस. सो 15 + 3 इज 18. नाउ सिंपल सा क्वेश्चन रह गया है. अभी आपको सिर्फ ये निकालना है, इतना स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. करेक्ट. सो 18 km/h आप चल रहे हो और टाइम दिया 12 मिनट्स, बट कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है. क्या गड़बड़ है, टाइम दिया है मिनट्स में. अभी टाइम को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, आवर्स में, या फिर हमें पूरा स्पीड चेंज करना पड़ेगा. तो अभी बेटर ऑप्शन क्या है, टू कम चेक फॉर द टाइम. करेक्ट, बिकॉज टाइम डिस्टेंस तो हमारा किलोमीटर में दिया है. तो 18 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन 12, और मिनट्स को आवर्स में चेंज करना है. सो व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड इट बाय 60. करेक्ट. सो दैट इज व्हाट वी हैव. इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट,
So 18 into 12 upon 60. So that is the distance traveled. Now let's do it. हो गया सॉल्व? हो गया. सो अभी हमारे पास क्या आंसर आता है डी का? 3.6 kilometers. Right? So that is our option D. That's the correct answer. Now let's move on to the next. The length of a rectangle is double the breadth. If the minimum perimeter is 120 centimeter, then breadth क्या होगा? Breadth will be greater than 20. Of course, centimeter will be here, but it's a numeric value that they are talking about. So now length is double the breadth. So length is double the breadth. पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? 2l+b इज पेरीमीटर. करेक्ट. सो नाउ पेरीमीटर, मिनिमम पेरीमीटर इज 120 गिवन टू यू. सो मिनिमम है, इसका मतलब हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू का कंडीशन है कि जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट करके वो क्या आनी चाहिए? 120 या फिर 120 से ज़्यादा. कम नहीं आ सकता पेरीमीटर, वो केस हमें निकालना है. सो 2b+b is greater than equal to, remember everyone, minimum value is 120 तो इक्वालिटी आएगा. इनइक्वालिटी ग्रेटर देन का आएगा और इक्वालिटी साइन भी आएगा. इट विल बी अ स्लैक इनइक्वालिटी. ओके. सो नाउ व्हाट डू वी हैव हियर? 6b. सो b का वैल्यू is greater than equal to 20. Only greater than नहीं आएगा, it will be greater than equal to 20. ओके. तब हमारे पास जो वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम पेरीमीटर, इससे ज़्यादा हो सकता है. लीस्ट एटलीस्ट 120 होना चाहिए. ओके. सो दैट इज व्हाट वी हैव. अगर हम बी की वैल्यू इंक्रीज करते रहेंगे तो हमारा पेरीमीटर भी इंक्रीज करता रहेगा. इट्स लाइक दैट. Okay, so equality sign is important here. Now let's move on to the next. Now we have to find the remainder when this five numbers are divided by 3. So we will use our property, right? Property में क्या है? अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम इंडिविजुअल रिमाइंडर्स ले सकते हैं. सो पहले हम 128 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आता है? 2. 256 को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आता है? 1. 37 को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आता है? 1. 68 को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आता है? 2. 53 को अगर हमने 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आता है? 2. लेट्स मल्टीप्लाई ऑल द 3 एंड अगेन डिवाइडेड बाय 3. कीप ऑन डिवाइडिंग जब तक आपको 3 से छोटा नंबर नहीं मिले. सो 2 इंटू टू इंटू टू कितना होता है? 8. नाउ 8 अगेन डिवाइड करिए 3 से. सो व्हाट्स द रिमाइंडर? 2. So what's your answer? कुछ आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है. विद इन सेकेंड्स यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. राइट. सो इट्स देयर इन द प्रॉपर्टी लिस्ट. ओके. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. इट इज करंटली 7 p.m. व्हाट टाइम विल बी आफ्टर 1000 आवर्स? ना 1000 आवर्स के बाद कितना टाइम होगा? सो इन चीज़ों के लिए जब AM और PM दिया होता है स्टूडेंट्स, बेस्ट इज गो फॉर 24 आवर साइकिल, नॉट 12 आवर साइकिल. क्योंकि 24 आवर्स में क्या है, आप PM से PM ही कैलकुलेट कर रहे हो तो आप कंफ्यूजन नहीं लोगे हमारी कितनी साइकिल्स हो गई, कब AM आया, कब PM आया. सो वी विल डिवाइड फर्स्ट 1000 बाय 24. ओके, बिकॉज वी आर टेकिंग 24 आवर साइकिल. सो पहले हम देखेंगे कितनी साइकिल्स हो गई, रिमाइंडर जो बचेगा हम उतना टाइम आगे कर देंगे. सो लेट्स डिवाइड 1000 बाय 24. पहले हम 4 से करेंगे. 96, 40, 1, 24. सो 16 आवर्स बचते हैं. 41 साइकिल्स हो जाएंगी हमारी. 16 आवर्स. नाउ मूव 7 PM से आपको 16 आवर्स आगे जाना है तो 12 आवर्स में क्या होगा? 7 AM. 4 आवर्स और बच गए तो 11 AM. सो योर करेक्ट आंसर इज 11 AM. 12 आवर्स से करेंगे यू विल बी कंफ्यूज कि ऑड नंबर ऑफ साइकिल्स हैं, इवन है, हम कहाँ पे आए. बेस्ट है गो फॉर 24 आवर साइकिल. जब भी AM PM का क्वेश्चन होता है ये ट्रिक लीजिए. इट विल बी इजी फॉर यू टू सॉल्व. नो एरर, डेफिनेटली नॉट. The milk and water in two vessels A and B are in the ratio 5:3 and 13:3. Now, in what ratio the liquids in both the vessels can be mixed to obtain a new mixture in vessel C containing milk and water in the ratio 3:1. Now, ये alligation और mixture का question है, आप सबको पता होगा. But now, two solutions, two types of liquids, and we have to make a third solution by mixing them. तो इसमें हम क्या करते हैं, जब हमें दो चीज़ें हमने मिक्स की हुई हैं एक वेसल में और दो वेसल से,
तो हम किसी एक का रेशो लेके कैलकुलेट करेंगे. ओके, सो वी हैव टू जस्ट चेक किस रेशो में हमें मिक्स करना है लिक्विड्स को. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. तो लेट्स टेक इट फॉर मिल्क फर्स्ट. तो वेसल ए अगर हम ले रहे हैं उसमें मिल्क कितना है, 5:3, मतलब 5/8. दूसरे में मिल्क कितना है, बी वेसल में 13. मिल्क, सिर्फ मिल्क की बात कर रहे हैं, वाटर को भूल जाइए. 13:16. तो अगर हम बेस सेम बना लेते हैं, मतलब डिनोमिनेटर सेम बना लेते हैं, तो हमें 10/16 मिल जाएगा. वो 13/16. और जो हमारे पास नया है उसमें क्या रेशो है, किस रेशो में चाहिए, 3:1, मिल्क और वाटर. ये ध्यान रखिएगा, मिल्क वाटर, कई बार दे रिवर्स नंबर्स. ओके, तो आपको वो थोड़ा सा ध्यान देना है. सो ना पे 3/4. इसको अगर हम 16 बना लें तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 12/16. देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया अभी. 10/16, 13/16, दो को मिक्स किया तो हमें क्या मिला, 12/16. राइट. So now let's move on with the same concept of alligation and mixtures. That is, you subtract the dearer and the mean and the cheaper, and you get the ratio of the cheaper and the dearer. So same thing we are going to use here. So now let's subtract it. So this is dearer minus mean, और ये क्या बन जाएगा, 1/16. और ये क्या बन जाएगा आपके पास, 2/16. राइट, दिस इज मीन माइनस चीपर. अब आपको देखिए, मैंने एक सिंपल सा लॉजिक बताया था कि चीपर के नीचे हमेशा चीपर ही आता है और डियरर के नीचे डियरर आता है. मतलब वेसल ए 1/16 और वेसल बी 2/16. तो इसका मतलब हमने ए और बी को किस रेशो में मिक्स किया, ए और बी को. अब वो किसका पूछ रहा है वो आपको चेक करना पड़ेगा. सो इट इज 1:2, ए और बी. तो पहले उसने ए दिया है या बी, वो आप चेक करिए. ए पहले दिया है, बाद में बी भी दिया है. सो व्हाट विल बी आवर आंसर, आवर आंसर विल बी ए ऑप्शन. अगर बी इज टू ए पूछा होता या पहले बी और बाद में ए दिया होता तो आपको 2:1 ऑप्शन करेक्ट करना पड़ता. करेक्ट. सो द टू लिक्विड्स इन व्हाट रेशियो, द लिक्विड्स इन बोथ द वेसल्स शुड बी मिक्स. बेसिकली आपको दोनों का लिक्विड मिक्स करना है टू गेट द रिक्वायर्ड रेशियो. Okay, so 1:2 ratio में. Let's move on to the next. This is on inequality. So -4 less than 3 minus 2x. इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, बस उतना ध्यान रखना है, अदरवाइज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव इट. -4 -3 इज लेस देन -2x. देखिए अभी हमने फॉर्मूला लिस्ट में इसको भी बहुत बोला था कि इंपॉर्टेंट है, माइनस माइनस कट नहीं करना है. अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाता है. वेरी गुड. सो 7/2 से छोटा होगा x, एंड 7/2 इज नॉट इंक्लूडेड बिकॉज इक्वालिटी साइन नहीं है. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर पार्ट. 3 minus 2x is less than equal to 11. इसमें इक्वल टू साइन है. राइट. सो इफ आई टेक दिस साइड, सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x. तो इसमें इक्वालिटी साइन है. तो इसके लिए क्या आएगा, राउंड ब्रैकेट पहले वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए क्या आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट. राइट. सो विच ऑप्शन इज इट, डी. -4 to 7/2. 7/2 स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा, राउंड आएगा, बिकॉज इट्स विदाउट इक्वल टू साइन. और -4 से बड़ा है और -4 के लिए इक्वालिटी साइन भी है. सो इट विल बी -4 with the square bracket. Okay, clear? Now let's move on to the next. Now again it's on both and streams. The speed of a motorboat to that of the current is in the ratio 7:1. पहले रेशियो देख लीजिए किस किसका दिया है, स्पीड ऑफ मोटर बोट और स्पीड ऑफ वाटर का दिया है, not upstream and downstream का speed. Okay, now the boat goes along with the current in 6 hours, the time in which it will come back. अभी हमने जो आपको फॉर्मूले दिए हैं बहुत पहले हमने इसको सॉल्व भी किए हैं बहुत सारे वीडियोस में. सो रेशियो ऑफ स्पीड्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ टाइम. करेक्ट. बट वो स्पीड किसकी होती है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड होती है. तो अभी हमें इससे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो निकालना है स्टूडेंट्स. ओके, सो स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ करंट दोनों दिए हैं हमें 7:1 रेशियो में. तो स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम कितना हो जाएगा अगर आप बताएंगे तो, ये 7x ले लीजिए, इसको x ले लीजिए. सो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करना होता है, बिल्कुल करेक्ट, 8x. अपस्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होता है, बिल्कुल करेक्ट. सो दोनों का रेशियो कितना हो गया,
सिंपल सा वे, बहुत इजी। एमसीक्यूज के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब शॉर्टकट्स। तो टाइम का रेशियो कितना हुआ, डाउनस्ट्रीम टाइम और अपस्ट्रीम टाइम का रेशियो? ऑफ कोर्स 3/4, वेरी गुड। नाउ बोट गोज अलोंग विद द करंट, अलोंग विद द करंट अगर बोट जा रही है इसका मतलब ये किसका है, डाउनस्ट्रीम। वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, ये टाइम किसका है, पूरा नहीं है। अलोंग विद द करंट, जिस डायरेक्शन में बोट जा रही है उसी डायरेक्शन में पानी भी जा रहा है। सो दिस इज द टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम। सो अगर ये 6 है तो हमारे पास ये x हमें निकालना है। इट इज एज सिंपल एज दैट। सो व्हाट विल बी द टाइम, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए आप लोगों का आंसर क्या आया। डी ऑप्शन आया सबका कि नहीं आया? देखिए ये 1:2, सो x की वैल्यू कितनी हो जाती है, 8। सो 8 आवर्स लगेंगे उसको आने में। देखिए 4 और 5 तो हो ही नहीं सकता बिकॉज 6 से कम है। तो आपको पहले तो ये चेक करना था क्या स्पीड का रेशियो दिया है और कैसे हम टाइम का रेशियो निकालेंगे। बट वो स्पीड का रेशियो दिया है मोटर बोट की स्पीड और करंट की स्पीड, और हमें किसका रेशियो चाहिए होता है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। सी वी आर सॉल्विंग ऑल दिस क्वेश्चन विद मिनिमम कैलकुलेशन। जब ये सब्जेक्टिव में अगर आते हैं कोई क्वेश्चन आ भी सकते हैं, ये इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन कम इन सब्जेक्टिव आल्सो। ये हो गया, इसके पहले जो हमने एलिगेशन मिक्सचर, तो आपको थोड़े स्टेप्स ज़्यादा लिखने पड़ते हैं। अभी आप क्योंकि एमसीक्यू ले रहे हैं तो हम इसको आसानी से विद इन सेकेंड्स वी कैन सॉल्व इट। ओके, नाउ द डिजिट एट यूनिट प्लेस, 2 रेज टू 400, 2 रेज टू 400 का यूनिट प्लेस डिजिट निकालना है। तो जब हमें यूनिट प्लेस डिजिट निकालना होता है तो हमें किसके साथ मॉड लेना होता है, 10 के साथ, बिकॉज इफ वी डिवाइड इट विद 10 विल गेट द रिमाइंडर। Now let's move on to this. So 2 रेज टू 400 डिवाइडेड बाई 10 करना है हमको बेसिकली। अब क्या करें, अब हमें कॉन्सेप्ट यूज करना है, करेक्ट। नाउ व्हाट्स योर ए, 2 रेज टू 400। अब 2 रेज टू 400 की जगह हम जरा नंबर्स को रिड्यूस करके लेंगे, करेक्ट। सो व्हाट विल यू गेट, 2 रेज टू 5। ओके, नाउ 2 रेज टू 5 अगर हम लेते हैं, 2 रेज टू 10 लेते हैं, सब कुछ 400 से डिविजिबल है, सब इवन इवन है। अब इवन इवन है तो हम कैसे करें, तो हमें थोड़े से स्टेप्स ज़्यादा करने पड़ सकते हैं, बट नॉट सो मच, करेक्ट। नाउ लेट्स मूव इट। सो नाउ लेट्स टेक इट 2 रेज टू 10। 2 रेज टू 10 आप सबको पता है, चलिए 5 से ले लेते हैं। 5 तो पता होगा सबको, 32। और 2 रेज टू 10 जिनको पता है 1024, उससे भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव इट। सो 2 रेज टू 5 कितना होता है, 32। 32 को अगर आपने 10 से डिवाइड किया तो मॉड 10। हमने आपको क्या बोला था, पावर वाला लिख के दिया था, राइट। सो 2 रेज टू 5 को हम कितने बार करेंगे, 80 टाइम्स। तो इसको भी 80 टाइम्स। अरे ये तो फिर मैम बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, हम इसको छोटा करते हैं अभी। सो 2 रेज टू 80 को अब हम करेंगे, जो रिमाइंडर आया हम उसको सिर्फ 10 से करेंगे। तो हमने पावर 400 से कहाँ पे रिड्यूस कर ली, 80 पे रिड्यूस कर ली। इतना सोचिए आप। अभी 80 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू 5 रेज टू 16। ओके, इसे हम 80 को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, 2 रेज टू 16 मिल जाएगा, करेक्ट। चलिए 80 से हम 16 भी ले आए। अब 16 जब हम ले आए तो हमारे लिए बहुत ईजी हो गया क्वेश्चन। देखिए कैसे, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू 5, 2 रेज टू 5 और 2 रेज टू 6 लिख सकते हैं। इसका रिमाइंडर 2, इसका रिमाइंडर 2। 2 रेज टू 6 कितना होता है, 64, करेक्ट। 2 रेज टू 6 कितना होता है, 64। तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा, 4, करेक्ट। उसका रिमाइंडर 4। अब आप फिर से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर अगर 10 से बड़ा आएगा फिर से डिवाइड करिए 10 से, तो कितना है, 16। तो बेसिकली 16 डिवाइडेड बाई 10 कितना रिमाइंडर होता है, 6। सो दैट्स योर फाइनल आंसर। बड़ा नंबर जरूर है स्टूडेंट्स, बट इट विल नॉट टेक मच टाइम। आप सिंपली रिड्यूस करते जाइए। हमें देखिए 1 और -1 मोस्टली भी टारगेट, बट वो मिल नहीं सकता बिकॉज नंबर इज इवन और पावर्स भी इवन पे जा रहे हैं, और 10 भी इवन नंबर, सब इवन इवन है। इसलिए 2 के टर्म्स में ही पावर्स आएंगी, बट 2 की पावर्स यू नो 2 रेज टू 8 ऑल्सो, यू नो 2 रेज टू 10 ऑल्सो, 2 रेज टू 5 6 सब आपको याद है। यू कैन easily solve it. Now let's move on to the next. This is on races and games. So A and B take part in 100-meter race. A runs at 5 kilometer per hour and A gives B a start of 8 meter and still beats him by 8 seconds. The speed of B is how much? अब इसमें ना थोड़ा सा आपको यूनिट्स पे ध्यान देना है, क्योंकि जो रेस है वो 100 मीटर की है और स्पीड हमें दी गई है किलोमीटर पर आवर में। तो हम चेंज करके यूज करेंगे। सो दैट इज व्हाट वी विल टारगेट फॉर। नाउ लेट्स मूव ऑन। सो ए रन्स एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर।
तो ए ने 100 मीटर रेस कितनी देर में कंप्लीट की होगी, पहले आपको ये निकालना है। क्लियर? फिर हम बी का निकाल सकते हैं इजीली। सो ए ने 100 मीटर रेस, आप इसको अगर करना चाहते हैं तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो ए का जो डिस्टेंस है वो 100 है, अब वो किससे मल्टीप्लाई होना है, 1/s से, टू गेट द टाइम। बट स्पीड इज नॉट 5 स्टूडेंट्स, स्पीड किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में आप कैसे चेंज करते हैं, 5 × 5/80 किससे चेंज करेंगे, सो दिस विल बिकम लाइक दिस, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, हाउ डू यू चेंज इट, you multiply it by 5/18. Now let's try to figure it out. So time कितना हो गया ये का, 72 minutes seconds, correct? 72 seconds में A ने complete किया. So now tell me how much time B will take to complete. So time taken by B is 80 seconds, correct? अब A gives B a start of 8 meters, मतलब B ने 100 मीटर तो कवर नहीं किया, B को कितना कवर करना था, इसका मतलब 92 मीटर्स। तो 92 मीटर्स डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया B ने, 92 meters, correct? So A gives B a start of 8 meters, so 92 मीटर ही B को कवर करना था। अब आपको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ B, सो डिस्टेंस अपॉन टाइम, करेक्ट, यही होता है। सो डिस्टेंस 92, टाइम 80। नाउ द पॉइंट हियर इज, ये जो स्पीड आएगा ये आएगा मीटर पर सेकेंड में, और इसको किस में कन्वर्ट करना है हमको, किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि हमारे ऑप्शन सारे किलोमीटर पर आवर। सो वी विल डिवाइड इट नाउ बाई 18/5। हमने फिर मैम स्टार्टिंग में क्यों चेंज किया, क्योंकि बेटा हमारे पास जो डिस्टेंस है वो मीटर्स में है, करेक्ट, तो हमें वो चेंज करना पड़ेगा। और हमने किलोमीटर पर आवर में क्यों नहीं चेंज किया डिस्टेंस का, बिकॉज वो फ्रैक्शंस आएगा। इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट यू कैन डू दैट ऑल्सो, कोई रॉन्ग नहीं होता है, करेक्ट। So now let's move on with this. So let's divide it and get the answer. So now let's start with it. So we get here 4 से करते हैं. So 23 and here we get 20 and then now here we get 10, here we get 9. So 50 और ये हो जाएगा 2. Right? So you will get 4 point something. So which is option is it? 4.14. MCQ है, easily you can hit the try. राइट, मेरी मैम 24 क्यों नहीं आया, चलिए फिर हम सॉल्व कर देते हैं। 4.14 एग्जैक्ट आएगा, क्योंकि 7 रिमाइंडर आएगा विच इज लेस देन 2 से डिविजिबल। ओके, सो हियर व्हाट वी गेट 4.14। क्लियर टू ऑल? राइट, नेक्स्ट मूव। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। चलिए 15 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। नाउ दिस इज ऑन पाइप्स एंड सिस्टम्स। So A and B are two taps which can fill a tank individually in 10 minutes and 20 minutes respectively. However, there is a leakage at the bottom which can empty a tank in 40 minutes. If the tank is empty initially, then time taken by both the pipes to fill the tank with leakage is. So आपको मैंने बहुत सिंपल सा फॉर्मूला दिया है और वो सबको याद हो तो फर्स्ट टैंक जो फिल कर रहे हैं उनको हम ऐड करते हैं, उनका 1 मिनट का टाइम, और जो एम्प्टी कर रहा है उसका हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 मिनट का टाइम। दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन। सो नाउ 40 is the limit. So 4 plus 2 minus 1. So that is what we get, 5/40. So what do we get? 1/8. So what's your answer? 8 minutes में the tank will get fill. दो टैप फिल कर रहे हैं, वन एम्प्टी कर रहा है। सो एडिशन फॉर द फिलिंग वंस एंड सब्ट्रैक्शन फॉर द एम्प्टिंग टैंक. Right? So now what do we get the answer? B. That is 8 minutes. Now let's move on to the next. A game of billiards, A can give 15 points to B in 60 and A can give 20 points to C in 60. How many points can B give C in a game of 90? Now in these questions, students, there is no formula as such. It is basically the ratios. एक सिंपल रेशियो का कॉन्सेप्ट होता है। अगर ए के पास 60 पॉइंट्स हैं तो वो बी को कितने दे रहा है, 15, दैट इज बी हैज हाउ मेनी पॉइंट्स, 45। और वो सी को कितने दे रहा है, ए इज गिविंग टू सी, सो ए के पास कितने हैं, 40। सो एक सिंपल सा थिंग है। अब हम जो इंटरेस्टेड हैं विद द सेकेंड कंडीशन, वी आर गोइंग टू टेक द रेशियोज फॉर बी एंड सी ओनली। सो बी और सी का रेशियो है 45:40।
अब हमारे पास जो गेम है वो 90 पॉइंट्स का है एंड दे आर आस्किंग हाउ मेनी पॉइंट्स कैन बी गिव सी। इसका मतलब बी के पास फुल 90 है और हमें एक्स निकालना है, तो इससे रेशो। तो 45 टू जार कितना होता है 90, तो 40 टू जार कितना होता है 80। एक मेथड डायरेक्ट यू कैन डू। तो ए सी के पास 80 पॉइंट्स है, तो बी के पास अगर 90 है तो सी के पास 80 है। सो हाउ मेनी पॉइंट्स कैन बी गिव सी? 10 पॉइंट्स। सो दैट्स अवर फाइनल आंसर, right? So B can give C 10 points in a game of 90. Now let's move on with this. This is again on linear inequalities. Now x, y and b, they are all our real numbers. X is less than y and b is less than 0. Then which of the condition is true? अब ये एक सिंपल कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है स्टूडेंट्स। x इज लेस देन y, तो अगर b सेम होगा तो हमारे पास लेस हो जाएगा, बट b इज लेस देन 0 ऑल्सो। Correct? If I just give you a one example and very simple example, 2 is less than 3. This is what you know. So let's take x as 2 and y as b. Sorry, 3 as y. Now b is less than 0. So less than 0, let's take one number minus 1. Okay, now let's find it. So x upon b निकालना है और y upon b निकालना है. This is what we have to find. Relation बाद में दिखा लेंगे. So now if I divide x by minus b, so what will you get? Minus 2. If I divide y by b, what do we get? Minus 3. Now what's the sign coming in? Minus 2 और minus 3 के बीच में क्या आएगा? Minus 2 is greater than minus 3. Simple सा. So what will be your answer? दिस इज द सेम क्वेश्चन जो हमने कंडीशंस आपको बताया कि अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं किसी भी इनइक्वालिटी को तो साइन रिवर्स हो जाता है। बेसिकली दिस इज दैट ओनली। पहले साइन लेस देन था बिटवीन एक्स एंड वाई, नाउ इट विल टर्न टू ग्रेटर देन। सो एक सिंपल वे में दिस इज व्हाट वी हैव, नो नीड टू थिंक मच, हार्डली अ सेकेंड। Now, a man can row 10 km per hour in still water. If the river is running at 2 km per hour, it takes him 75 minutes to row to a place and back. How far is the place? So now this is on boards and streams. Now for this question, what do we have? You have the speed. Again, still water का speed मतलब the speed of the boat in still water and the speed of the running river. So current का speed है। तो हमारे पास डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना हो गया स्टूडेंट्स? 12। अप स्ट्रीम स्पीड कितना हो गया? विल सब्ट्रैक्ट 12 is to 8. Now it takes him 75 minutes to row to a place and back. तो दोनों का टाइम मिला के 12 और 8, दैट इज सॉरी स्पीड इज 12 एंड 8, सो दोनों का टाइम मिला के 75 है। सो दोनों डिस्टेंसेस क्या हैं? सेम है हमारे पास, करेक्ट। सो नाउ d by 8 plus d by 12, टाइम फॉर द डाउन स्ट्रीम, टाइम फॉर द अप स्ट्रीम, दोनों का टाइम मिला के कितना है हमारे पास? 75। बट 75 मिनट्स और टी स्पीड किस में है? किलोमीटर पर आवर में। बस यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है। वी विल चेंज द टाइम टू आवर्स। सो नाउ 75 अपॉन 60, इसको सॉल्व कर लीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास अभी, करेक्ट। नाउ लेट्स फाइंड द एलसीएम। सो 12 और 8 का एलसीएम वी कैन टेक 24। सो व्हाट डू वी गेट? 3d प्लस 2d। 75 और 60 को आप डिवाइड कर लीजिए। 12 से कर लेते हैं 5 से कर लेते हैं, सो 12 आएगा, यहाँ पे 15 आएगा। आप और कर लीजिए, सो 5/4, करेक्ट। और ये बन गया 6, सो 5d इज 30, सो d इज हाउ मच? 6। सो व्हाट्स योर करेक्ट आंसर? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर कमिंग, सो टोटल डिस्टेंस 12। So अगर total distance होता तो 12 आता, but how far is the place? Place is only 6 kilometer. He went and came back also. Okay, so just put on that. Now again it's on races and games. In a 500-meter race, Sophia beats Avni by 20 meters or 4 seconds. Correct? So now Sophia's time over the course. उसने कितनी देर में finish किया? Now the point here is 500 meter का race है, Sophie beats Avni by 20 meters or 4 seconds. So now let's find out the time for Sophia. बट पहले हम किसका टाइम निकाल सकते हैं विद द गिवन कंडीशन, दैट इज इम्पॉर्टेंट। हम पहले निकाल सकते हैं अवनी का टाइम। सो लेट्स फाइंड द अवनीज स्पीड ऑफ अवनी। तो स्पीड ऑफ अवनी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 20 मीटर या 4 सेकेंड्स, मतलब 20 मीटर्स वो कवर करता कितने में? अवनी कवर करती कितने में? 4 सेकेंड्स में। इसका मतलब उसकी स्पीड कितनी है अवनी की? 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ अवनी। नाउ टाइम टेकन टू कवर
500 meters. अवनी कवर कर रही है 5 meters इन 1 second, तो 500 meters कितने में कवर करेगी? 500 डिवाइडेड बाई 5, सो 100 seconds लगेंगे उसको पूरा कवर करने में, 500 meters, करेक्ट। अब हमें किसका निकालना है? टाइम टेकन बाय सोफी। तो सोफी को कितना टाइम लगा? बहुत सिंपल, यस वेरी गुड, सोफी को 4 सेकेंड कम लगे क्योंकि उसने उसको 4 सेकेंड से हट बीट किया। सो 100 - 4 कितना होता है? 96 सेकेंड्स। तो अब इसमें सोफी का डेटा ही नहीं है हमारे पास, क्वेश्चन इनकम्प्लीट नहीं है, अवनी का डेटा है, और अवनी और सोफी के टाइम में वी कैन रिलेट, सो द फाइनल आंसर इज डी, करेक्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। Now the remainder when 16 raised to 53, अरे बाप रे क्या नंबर है। सो नाउ 16 raised to 53 को हमने 7 से डिवाइड करना है, करेक्ट। हमें रिमाइंडर निकालना है, बट क्वेश्चन इज वेरी इजी टू सॉल्व स्टूडेंट्स, ओके। नाउ अगर हम अभी इसको एक बहुत सिंपल वे में करें, तो अगर आप सिंपली 16 को डिवाइड करते हैं 7 से, तो रिमाइंडर कितना आता है? 2, करेक्ट। सो दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस, करेक्ट। हमें बी चाहिए, क्या रिमाइंडर है? सिंपल रिड्यूस कर दिया हमने। अब 2 raised to 53 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 2 raised to 3 क्या होता है? अगर हम 7 से डिवाइड करें 1 रिमाइंडर आएगा, क्योंकि 2 raised to 3 is 8। अब हमें यहाँ 1 मिल गया, अब हम बहुत ईजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 को हम कितनी पावर रेज करें कि हम 53 के नियरेस्ट पहुंच जाएं? 17, वेरी गुड। और फिर 2 स्क्वायर, करेक्ट। सो 1 into 2 स्क्वायर इज योर रिमाइंडर। क्यों? अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इसका आंसर तो 1 ही रहेगा, 1 raised to 17 इज 1, 2 स्क्वायर इज लेस देन 7, तो वो 4 ही रहेगा। सो 1 into 4 क्या होता है? 4। सो 4 विल बी द रिमाइंडर बिकॉज दैट नंबर इज लेस देन 7। So that is it. Right? I hope you all have understood all these questions. It was a full revision of the chapter. Then we all would have done very well. Correct? Thank you. If you like it, please share it. Right? And subscribe to the channel.